Hello friends, uh, I am again online on Facebook Live, and the topic which I am going to discuss today is atoms and molecules. Okay, so we are going to discuss basically atoms and molecules. Okay, once I will describe in English, and second time I will do it in Hindi. Okay, sure. So let's start the video. Okay, see. The word atom, the word atom has been derived from the word atomos. The word atom has been derived from a Greek word atomos, which means indivisible. The word atom has been derived from the word atomos, which is a Greek word which signifies or which has a meaning of indivisible. Okay? John Dalton was the first person who made any comment onto the existence of an atom. You see, everybody has got through Dalton's atomic theory starting from class 8, 9, 10th and so on. And in fact, it is in the syllabus of JEIT examination. And we will also have it in the chapter Structure of Atom. We will read there Dalton's atomic theory. So, John Dalton was the first person who made any comment onto the existence of an atom. The word atom was coined by John Dalton. The word atom was coined by John Dalton, that is, the atom was called as atom by John Dalton. Okay? See, according to Dalton's atomic theory, an atom is being defined as the smallest possible unit of any particular substance which does take part in any particular chemical reaction. According to Dalton, as stated in his atomic theory, that is called Dalton's atomic theory, an atom may be defined as the smallest possible unit of any particular substance which does take part in any chemical reaction. Dalton did not make any particular comment onto the existence of an atom. I mean to say, Dalton did not put any light onto the existence of any atom, that whether any atom could have an independent existence or could not have an independent existence. I think you must have got the point. See, the thing is that Dalton was the first person who made any particular comment onto the existence of an atom. The first primitive definition of an atom was coined by John Dalton. The name of an atom was given by John Dalton. The word atom was coined by Dalton. According to Dalton, an atom may be defined as the smallest possible unit of any particular substance which does take part in any chemical reaction. It is a primitive definition. It is a basic definition. It is the most ancient definition. But nowadays, I mean to say today we are in the modern science. Now, according to modern atomic theory, and the modern atomic theory is not given by any particular single scientist. It is a collective effort of various scientists. Thomson's atomic model, Rutherford's atomic model, Bohr's atomic theory, Planck's quantum theory, Heisenberg's uncertainty principle, de Broglie's equation, Schrodinger's equation. This debate could be endless because there is particle mechanics, then quantum mechanics, then wave mechanics.
We will have this in the structure of atom chapter. So, according to modern atomic theory, which is not given by a single scientist, an atom may be defined as the smallest possible unit of any particular substance which 100% surely does take part in any chemical reaction, but which may or may not have an independent existence. So, according to modern atomic theory, an atom may be defined as the smallest possible unit of any particular substance which does take part in any particular chemical reactions, but which may or may not have independent existence. This is all about an atom. So I am making it a repetition. The word atom was derived from a Greek word called atomos, which means indivisible. The word atom was coined by Dalton. Dalton was the first person who made any particular comment onto the existence of an atom. According to Dalton, an atom may be defined as the smallest possible unit of any particular substance which does take part in any chemical reaction. But Dalton was unable to specify about the existence of a particular atom, whether it can exist as a free unit or whether it could not exist as a free unit. But nowadays, the atom is being defined. The definition which we come across about an atom is postulated, is given from modern atomic theory. And the modern atomic theory is not being attributed to any particular single scientist. It is a collective effort of various scientists, as I have stated earlier. According to modern atomic theory, which is being followed in the today arena, an atom may be defined as the smallest possible unit of any particular substance which 100% does take part in any chemical reaction, but it may or may not have independent existence because of the existence of inert gases, because of the existence of noble gases, which does have an independent existence. By saying independent existence, I mean to say अपनी मर्जी का मालिक, खुद मुख्तार. By saying independent existence, I mean to specify about you can do things at your own will. You can do things at your own will because beggars are no choosers. And if you can do your own things at your own will, then you belong to the Leo zodiac sign. That is Singarati. I am just trying to make you feel understand in a much more efficient manner. That's it. Now let's talk about molecule. The word molecule was coined by Amdev Avogadro. And Amdev Avogadro is not a brother of Ramdev. The word molecule was named as molecule by Amdev Avogadro. And a molecule is being defined as the smallest possible unit of any particular substance which does have an independent existence, which can exist as a free unit, which does have an independent existence. I will clarify this independent existence and dependent existence in Hindi later on when I will do it in Hindi. So, the word molecule was proposed by Amdev Avogadro. Any molecule is being defined as the smallest possible unit of any particular substance which does have an independent existence or which can exist as a free unit, as a free independent unit. Okay, let's now do it in Hindi. For the students who are not comfortable with English, let's do it in Hindi. सबसे पहले एटम के बारे में.
एटम वर्ड को डिराइव किया गया है, मतलब निकाला गया है, लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से जिसको एटोमोस, और एटोमोस जो ग्रीक वर्ड है उसका हिंदी में मीनिंग है अभाज्य, इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को एटम कह के पुकारा डाल्टन ने। ये क्वेश्चन है, एटम को एटम कह के किसने पुकारा और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल कह के किसने पुकारा? एबीयू अलीगढ़ के मेडिकल का साल मुझे याद नहीं है, साल याद करना तुम्हारा काम है, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जाओ खोजो कहाँ मिला। इसलिए बार बार मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि चूंकि अलीगढ़ एबीयू के मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एटम को एटम कह के किसने, एक ही क्वेश्चन था, द वर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल वाज क्वाइंड बाय, आंसर था डाल्टन एंड अवोगाद्रो। इसलिए मैं बार बार इस पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि एटम जो वर्ड है वो एटोमोस एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग है अभाज्य, इंडिविजिबल, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते। एटम को एटम कह के पुकारा जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन वो पहला शख्स था या पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के एग्जिस्टेंस पर, वजूद पर, अस्तित्व पर किसी तरह का कोई कमेंट किया, टिप्पणी किया। एटम को डिफाइन सबसे पहले अगर किसी ने किया तो वो जॉन डाल्टन, शायद इसीलिए 8वां क्लास से आप अपने सिलेबस में जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं, और हफ्ते जेईई के सिलेबस में इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं चूंकि ये आपके जेईई के सिलेबस में है। एटम को एटम कह के पुकारा जॉन डाल्टन ने। एटम पर किसी तरह का कोई टिप्पणी सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने किया तो उसका नाम जॉन डाल्टन था। एटम को सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने परिभाषित किया तो वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सबसे पुरानी एटॉमिक थ्योरी है एज फार एज द मैटर ऑफ एन एटम इज कंसर्न्ड। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एक एटम को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, ये किसी भी सब्सटेंस का, पदार्थ का संभावित सबसे छोटा वो हिस्सा है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। लेकिन जॉन डाल्टन ने अपने डिफिनीशन में बिल्कुल ये नहीं बताया कि उस एटम का क्या मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है या नहीं हो सकता। आज जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं एक एटम का, वो डेफिनेशन है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसी एक सिंगल साइंटिस्ट ने नहीं दिया। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान है, स्टार्टिंग फ्रॉम जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड का वो आपका एटॉमिक मॉडल जो आधार है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है, जो पार्टिकल मैकेनिक्स पर आधारित है। उसके बाद रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने के बाद आप फिर पढ़िएगा बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। उसके बाद आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन बिटवीन पढ़ते हैं, और उसके बाद आप पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर डी ब्रोगली का डुअल कंसेप्ट ऑफ डुअलिंग, और फिर आप पढ़ते हैं वेव मैकेनिक्स वाला वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो स्क्रॉडिंगर ने अपने इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन किया। ये कलेक्टिव डेफिनेशन है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एक एटम का, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की ही डेफिनेशन आज हम फॉलो करते हैं जो कहता है कि एक एटम, जॉन डाल्टन की पूरे डेफिनेशन को उसने लिया, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सिर्फ बात हुई कि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या नहीं है, या दोनों हो सकता है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एक एटम, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं, अब इससे ज्यादा हिंदी हमसे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डाल्टन के हिसाब से एक एटम किसी भी पदार्थ का संभावित सबसे छोटा वो हिस्सा है जो रासायनिक क्रिया में 100% भाग लेता है, और जिसका अस्तित्व स्वतंत्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो इसलिए कि इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के एटम्स में है और मॉलिक्यूल्स में है, ठीक है। अब आते हैं मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल कह के पुकारा अवोगाद्रो ने, आमदेव अवोगाद्रो ने, जिनका अवोगाद्रो लॉ हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट चैप्टर। मेहनत बर्जिलियस का काम करके निकल गया अवोगाद्रो। बर्जिलियस is the most unluckiest scientist in the entire arena of science. सारा मेहनत बर्जिलियस ने किया, लेकिन लोग जानते हैं अवोगाद्रो लॉ को अवोगाद्रो के नाम से। सारा मेहनत बर्जिलियस ने किया कैटलिस्ट के डिफिनेशन के लिए, लेकिन आज हम कैटलिस्ट का डिफिनेशन जो पढ़ते हैं वो ओस्टवाल्ड के नाम से पढ़ते हैं। इसीलिए बर्जिलियस इज द मोस्ट अनलकीस्ट साइंटिस्ट इन द एंटायर अरेना ऑफ साइंस। जो कहावत है ना, वो माल महाराज का बेटा खेले होली, वही मामला हो गया बेचारे बर्जिलियस के साथ। सिर्फ बात
करते हैं इस तरह से हम सिर्फ इसलिए कि बच्चों के अंदर काबिलियत हो, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। बाकी इंटर आओ, मेडिकल आओ, इंजीनियरिंग तो लोग करते ही रहता है। बहुत सारा इंजीनियर है, डॉक्टर खैनी लगाता है बॉम्बे में बस स्टॉप पर, ठीक है ना। ये पर्सोना डेवलप करने के लिए इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है, ताकि कुछ इन्फ्यूजन हो सके आपके अंदर। तो एक मॉलिक्यूल का जो डेफिनेशन है मेरे भाई, ये मॉलिक्यूल किसी भी पदार्थ का संभावित सबसे छोटा हिस्सा है जिसका 100% एग्जिस्टेंस स्वतंत्र होगा ही। जिसका एग्जिस्टेंस स्वतंत्र है और नहीं भी है वो है एटम, और जिसका 100% एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसको हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल क्या किया, किसने पुकारा? आमदेव अवगतरो। अब बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दोनों में क्या फर्क है उसको समझाते हैं। जैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाता हूं पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे मैं बताता हूं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, मान लीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इनस्टेबिलिटी, भिखमंगाई। जो लोअर क्लास हमारे सोसाइटी में है बेचारा, दिन रात परेशान है 2 जून की रोटी के लिए, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बाद फिर आप आइएगा तो आप पढ़िएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? बनआउट टाइप का लोग, सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, रात कुछ बोलेगा, पूरा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन? जो फरआउट टाइप का लोग है, ठीक है। सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, रात कुछ बोलेगा, जिसके दिमाग में कंफ्यूजन भरा हुआ है, पूरा कंफ्यूज है वो, खानदानी कंफ्यूज, ठीक है। जैसे कुछ आदमी को आप बोलिएगा कि ये चलो ये काम किया जाए, तो पता नहीं किया जाए कि नहीं किया जाए, वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो और भयानक फ्रॉड। नेता लोग, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, देखेगा कुछ, दिखाएगा कुछ, सुनेगा कुछ, सुनाएगा कुछ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर आपका वो है हेलोजन, बॉलीवुड हॉलीवुड, भयानक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और लास्ट में है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जिसको आप नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं, जो महीना भर निकलवे नहीं करता अपने राष्ट्रपति भवन से। इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन है कि बाथरूम में जाने के लिए हो सकता है मोटरसाइकिल का प्रयोग करता I am just giving an example to make you feel understand. Okay, that's it. तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मेरा कहना यह है कि मान लीजिए बारिश हो रही है 4-5 दिन से, अभी चूंकि मानसून आ गया है इसलिए एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट दूंगा मैं। मान लीजिए बारिश हो रही है 3-4 दिन से, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है। तो हम और आप जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास के लोग 2 पैसा कमाते हैं तो 1 पैसा खाते हैं, तो 1 पैसा सेविंग करते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग 3-4 दिन घर में रह जाएं, बाहर नहीं निकलें, क्योंकि हमारे घर में उतना खाने का चावल गेहूं सब स्टोर्ड है। तो बारिश हो रही है बहुत जम के, तो नहीं जाएंगे बाहर, है ना, घर में ही रहेंगे, ठीक है। यानी हमारा एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है भी और नहीं भी है। जब मेरा सेविंग खत्म होगा तब तो हमको बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। जो अभी हालत है हमारे कोचिंग वाले भाइयों की, खास करके इंडिविजुअल कोचिंग वाले हमारे रेस्पेक्टेड जो फ्रेटर्निटी के ब्रदर्स हैं, उनकी यही हालत है अभी लॉकडाउन के चलते। सरकार घंटा नहीं सुन रही है, क्योंकि सरकार सुनती उसी की है जो सरकार के छतिया पे जाता है चढ़, और उसके लिए करना पड़ता है विधानसभा के नाम। यही डर है, सरकार विधानसभा खोलिए नहीं रही। चलिए, बहुत सारा मामला है। अभी लड़कन लोग भी उतरेगा रोड पर, जब स्कूल कॉलेज खुलेगा, 4 महीना 5 महीना का किराया, बहुत मामला है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है भी और नहीं भी है। हमने सेव करके रखा पैसा, 2 पैसा, क्योंकि मिडिल क्लास भाई 2 पैसा कमाता है तो 1 पैसा खाता है, अपने पर खर्च करता है, 1 पैसा बचाता है बुरे दिनों के लिए। तो जब मेरे पास सेविंग है तब तो हम रह सकते हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सेविंग खत्म होगा तब तो निकलना पड़ेगा। यानी हमारा एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है भी और नहीं भी है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कीजिए रिलायंस के चेयरमैन का, अंबानी का, अजीम प्रेमजी का, बिग बिजनेस मैग्नेट लोग जो हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, उनको क्या फर्क पड़ता है? 5 साल लॉकडाउन लगा दीजिए, घंटा नहीं उनको फर्क पड़ना है, दुनिया भर का पैसा है,
कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर का लॉकडाउन रहे, उनको क्या घंटा फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आराम से घर में आराम फरमाएंगे। वो उनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फिनेंशियली। क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी हर कोई चाहता है, क्योंकि दुनिया में करेंसी ही है ना रिएक्शन में जो इस्तेमाल होगा। अब सोशल रिएक्शन करेंगे तो करेंसी, शादी ब्याह होगा तो फोकट में थोड़ी हो रहा है, वो तो पहले तय हो जाता है अंडर द टेबल। नीतीश कुमार के दहेज बंदी से थोड़ी कुछ हो जाना है। नीतीश कुमार अपना ब्याह किए थे, दहेज नहीं लिए थे क्या? ये सब फालतू का नेतागिरी है। कहने का मतलब है कि सोसाइटी में सोशल रिएक्शन में जो करेंसी इस्तेमाल होता है वो तो रुपया है, और आपको स्टेबिलिटी, हम हो, आप हो या कोई भी बंदा हो, वो स्टेबल कब फील करता है? जब उसके पास फिनेंशियल स्ट्रेंथ रहता है। और बिलीव कीजिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है आपको, मतलब बहुत सारे आपको कॉन्फिडेंस देता है। आजकल के जमाने में फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है ना, वो आपका बैकबोन है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, बिलीव कीजिए। फिनांस आपका गड़बड़ाएगा तो बढ़िया बढ़िया आदमी का कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। मिडिल क्लास के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं और आप लोग भी बिलोंग करते होंगे, है ना, तो वो आपको स्टेबिलिटी देता है। उसी तरह से अगर कोई बेचारा लेबर क्लास पीपुल है, लेबर क्लास का क्या हाल हुआ अभी लॉकडाउन में, आप जानते हैं, सब लोग परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं था, और सेविंग जब नहीं था तो उनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं था। सरकार को घंटा समझ में आता है, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, कोई सोना चांदी थोड़ा ना खाएगा यार, खाना तो सबको चाहिए ना। कहने का मतलब है सरकार कोई भी हो इसी तरह का निर्लज वाला काम करता है, कोई सरकार रहे। क्योंकि कोई भी नेता बनता है तो लूटने के लिए बनता है। डाउट लगे तो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, आप भी नेता बनिएगा तो ही शुरू कीजिएगा जो लोग करता है। तो कोई ईमानदार नहीं है, नेता भी इसी सोसाइटी से आता है, कहीं से एलियन ऊपर से थोड़ी ना उतरा है, इसी सोसाइटी से हमारे बीच से ही नेता जाता है। कहने का मतलब है कि उस गरीब रिक्शा वाले का, ठेला वाले का, बेचारे का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है ही नहीं। वो अगर नहीं निकलेगा कमाने के लिए, क्योंकि वो डेली खाने कमाने वाले हमारे भाई लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा, वो बरसात हो, ठिठुरती हुई ठंड हो, चिलचिलाती हुई धूप हो, अगर वो बेचारा नहीं रिक्शा चलाएगा, नहीं अपना मजदूरी करेगा, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। और मिडिल क्लास की बात करें हम लोगों की, तो हम लोगों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है भी और नहीं भी है। सेविंग जब तक है तब तक हम घर में रह सकते हैं, सेविंग खत्म तो हम लोग भी छटपटाना शुरू करेंगे। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, अनिल अंबानी का, धीरू अंबानी का, और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट लोग का, जिनको 5 साल भी लॉकडाउन लगा दिए तो घंटा नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये समझाने का मेरा मकसद ये था कि एक मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा और एक एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता, नहीं भी सकता, डिपेंड करता है कि वो कौन से एलिमेंट के एटम्स हैं। नोबेल गैसेस के एटम्स होंगे तो उनके अंदर एटम भी होगा और मॉलिक्यूल भी होगा। एटम तो होगा ही, मॉलिक्यूल इसलिए होगा कि उनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। दूसरा एग्जांपल हम देंगे, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। अभी आप कुंवारे हैं, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल बनता कैसे है? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम या अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो होता है वो एक ही जात के अलग अलग आदमी या अलग अलग जात के अलग अलग आदमी के बीच जब रासायनिक विवाह होता है, केमिकल मैरिज होता है, तब जाकर के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ए मॉलिक्यूल इज बीइंग फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन different atoms of the same element और different atoms of different elements। एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम या अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम के बीच रिएक्शन के चलते, कॉम्बिनेशन के चलते। और कॉम्बिनेशन होगा तो कंबाइनिंग कैपेसिटी पे होगा, और कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी तय किस पे होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो अगर अभी आप कुंवारे हैं तो अभी आपको अगर कोई दोस्त आपका अगर आपको इनवाइट करेगा, अगर अपने यहाँ कोई फंक्शन उसके यहाँ होगा, तो वो आपको आपके कार्ड पे डायरेक्ट लिख देगा टू मनोज, टू विनोद। या बहुत गहरी दोस्ती होती है तो कार्ड भी नहीं देता, फोने करके बोल देता है अरे गुरुआ आ जाना तो रे, हमारे यहाँ फंक्शन है। मतलब
आपको इंडिविजुअल आपके नाम से काट दे रहा है। लेकिन कल होके जब आप मॉलिक्यूल हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, चाहे आप ही के जात के आदमी से हो, चाहे अलग जात के आदमी से हो, चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे स्वजातीय विवाह हो, यानी चाहते आप अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइटम से मिल करके बने या अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग आइटम से मिल करके अगर आप मॉलिक्यूल बने, तो जब आपकी शादी होगी तब आपको जो इन्वाइट करेगा आपका दोस्त, वो बड़े इज्जत से करेगा। कार्ड पे आपका नाम लिखेगा, मिस्टर एंड मिसेज मनोज, मिस्टर एंड मिसेज विनोद, मिस्टर एंड मिसेज गुड्डू। यहाँ तक के आपके फादर भी आपको इज्जत से बुलाएंगे। गुस्सा होंगे तब भी, अभी आप कुंवारे हैं, कम उम्र है, आप बदमाशी कीजिएगा, आपके पिताजी तुरंत जो है तेल पिलावन रैली करेंगे आपके साथ, घर घुसेंगे, रे बुलाओ तेरे गुडुआ को मार लाठी से। लेकिन कल होकर जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपके कमरे में आपके फादर नॉक करके आएंगे, और अगर आपके फादर आपसे गुस्सा भी होंगे तो तरीके से बोलेंगे कि जरा गुड्डू को छत पे भेजिए तो सन्नाटा में। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अब आपका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अब आप मॉलिक्यूल बन चुके हैं। इसलिए याद रखेंगे कि मॉलिक्यूल्स का 100% एग्जिस्टेंस आजाद स्वतंत्र अस्तित्व होगा ही होगा। यही कारण है कि तमाम एटम बेचैन होते हैं मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाने के लिए। इसीलिए समाज में बड़े बुजुर्गों ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। उसमें कहा गया कि गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा? हर एटम मॉलिक्यूल बनना क्यों चाहता है? क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और सब आदमी अपना एग्जिस्टेंस क्या चाहता है? वो चाहता है कि किसी के ऊपर डिपेंड करें। सब क्या चाहता है कि अपना एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो। हर आदमी चाहता है कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व हो, हम अपने मर्जी के मालिक हो। समझ में? वो किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार सुनिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ऑनलाइन फेसबुक लाइव पे आएंगे, देन वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, प्राइमरी मॉलिक्यूल्स, ट्राइनरी मॉलिक्यूल्स, टेट्रानरी मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एटसेट्रा। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक है? तो कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार सुन लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड that you can drop your queries in the comment boxes or in the inboxes or through WhatsApp or through any medium man you would like to have those queries sent to me. Okay? I would be more than happy to answer all your queries. That's it. So today that was this lecture. ठीक है? तो फिर मिलेंगे, तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, और उसके बाद फिर अवोगाड्रोस नंबर और मोल के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है ना? ठीक है, फिर कोई दिक्कत हो? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि सब लोग अच्छे से रहें, सेफ रहें। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा फॉर गॉड सेक। ठीक है ना? चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज, गुड नाइट, नमस्ते, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय, टेक केयर।